Good morning, bon après-midi, guten tag, and namaskar to all our attendees who've tuned in from around the globe. Today, we will be looking at the 360-degree perspective of diabetes with our distinguished guest, respected Professor Dr. Asif Iqbalji and Dr. Hamid Rasool on the Health Talk Show under the aegis of IIU Medical Council, headed by Dr. Hamid Rasool. A very warm welcome to you, Professor Dr. Asif, and a good evening to you, sir. And a warm welcome to you, Dr. Hamid, to today's episode of Health Talk. Over to you, sir. Good evening. Thank you. Thank you so much, Dr. Ranju, for helping us. And today we are going to some introduction about IIU Medical Council. And then we will going to Professor Dr. Asif Iqbal, and we will be discussing an insightful discussion about diabetes, the 360-degree perspective of diabetes. So IIU Medical Council is basically an international platform where they are educating different educators, trainer, and medical professional, training students and professionals around the globe. It is not only just an international platform, but it is also have various coordinators, country coordinators around the globe, where they are teaching various students and trainers in the field of medicine and health. So today we are going to talk on specifically on diabetes with Professor Dr. Asif Iqbal. So thank you so much, sir, for joining us, and we will go with some question, and you will be going to answer this question. Sure. Are you ready, sir? Yes, I'm ready. Okay. So first of all, sir, thank you so much for joining us. And the first question is that please, sir, give a little bit introduction about diabetes. That what is it, and how its pathogenesis and how it develop in the body of human. At first, I asked a question that can we speak in Urdu or English? Yes, sir. You can speak Urdu also. थैंक यू हामिद मैडम, जैसा कि आपको आपने तारुफ करवाई दिया और मैडम ने भी, कि मैं पिछले 34 साल से हमदर्द यूनिवर्सिटी के साथ वाबस्ता हूँ और वहाँ मैं डीन रहा, और उसके बाद फिर अब मैं एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है एविसीना इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज उज़्बेकिस्तान में, मैं अभी उसको हेड कर रहा हूँ। और इसके अलावा यहाँ पर हमारी एक क्लिनिकल चेन है जिसको मैं रन कर रहा हूँ। यहाँ पे न्यूट्रिशन के एतबार से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और 25 साल से मैं मेडिसिन, हर्बल मेडिसिन और एलोपैथिक मेडिसिन दोनों ही हमदर्द यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ। और बेसिकली जो स्पेशलिटी है वो न्यूट्रिशन की है, और मैंने लीवर डिजीज में पीएचडी किया और हमदर्द यूनिवर्सिटी से ही, और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह इदारों से मैं वाबस्ता हूँ। और thank you so much, sir, for a little bit introduction about yourself. So then we are going to talk specifically on diabetes because nowadays it is a global burden for all of us. क्योंकि एक ऐसी वबा है जो आजकल फैलती जा रही है. So first of all, सर हम इस पे बात करेंगे कि ये डायबिटीज है क्या चीज. Please a little bit introduction about that. देखिए हमें बेसिकली तो सारी दुनिया जानती है कि ये एक इंसुलिन की डेफिशिएंसी जो डायबिटीज के एतबार से पूरी दुनिया की, यानी कि बुक्स यही बताती हैं कि भाई इंसुलिन के ना होने की वजह से या ना बनने की वजह से या इंसुलिन इंटॉलरेंस की वजह से हमारे यानी कि सॉरी इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से ये ब्लड शुगर जो है वो हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और अगर ये ब्लड शुगर फास्टिंग में 140 और रैंडम में 180 से ज़्यादा जाती है तो इसको इदारे जो हैं वो डायबिटीज़ के तौर पे एक्सेप्ट करते हैं। और इसके साथ इसके और पैरामीटर्स हैं जैसे HbA1c है, सी पेप्टाइड है, सीरम इंसुलिन है, और इसके एसोसिएटेड जो
इन्वेस्टिगेशन है जिसमें लिपिड प्रोफाइल है और उसके अलावा कोफैक्टर्स हैं। इन सब के स्कोरिंग कलेक्ट करने के बाद अगर ये सारी चीज़ें अपनी रेंज से हाई हैं तो ये डायबिटीज़ की डेफिनेशन में आती हैं। इसके अलावा जो डब्ल्यूएचओ ने इंसुलिन की डिवीजन्स किए हैं वो 3 तरह की टाइप्स इंसुलिन की डब्ल्यूएचओ ने इंट्रोड्यूस कराई हैं। टाइप 1 जिसे आप जानते हैं कि जिसमें इंसुलिन बिल्कुल नहीं बन रही। टाइप 2 है जिसमें कि इंसुलिन बन रही है लेकिन ना काफ़ी बन रही है, और इंसुलिन को स्टिमुलेट करने के लिए, पेंक्रियास को स्टिमुलेट करने के लिए हम कुछ मेडिसिन यूज करते हैं। और तीसरी जो इंसुलिन है वो हाइपरग्लाइसीमिया जो कि चीनी की वजह से या वाइट शुगर की वजह से हो रहा है, उसको भी डब्ल्यूएचओ ने इंक्लूड किया है टाइप 3 डायबिटीज के तौर पे। बेसिकली अगर कोई शख्स प्योर क्योर होना चाहता है या तो उसको इन डायबिटीज की जो कुछ पैथोलॉजी है या पैथोफिजियोलॉजी है, उसकी माहियत है, उसको उसको समझना पड़ेगा। जो कि मैं आपको 2 तरह की मिसालों से डायबिटीज की जो हकीकी शक्ल है वो समझाना चाहूंगा। कि जैसे हमारा ये एक हथेली है, इसको आप हथेली को पेंक्रियास समझ लें। इसका एक हिस्सा इंसुलिन ग्लूकागॉन बना रहा है और एक हिस्सा लाइपेज और अमाइलेज बना रहा है। इन दोनों की माहियत में क्योंकि 70 to 80% बल्कि इससे भी ज्यादा जो है ना वो वाटर का एलिमेंट होता है, और इन दोनों की रिश्तेदारी मोहल्लेदारी सारी जिंदगी चलती रहती है। अगर किसी ने बहुत ज्यादा रिच लिपिड डाइट खा ली तो जाहिर बात है बॉडी में लाइपेज, अमाइलेज, कंजुगेटेड बाइलोबिन, इन चीजों की जरूरत बढ़ जाएगी। और अगर किसी ने गन्ने का रस पी लिया या बहुत ज्यादा मीठा खा लिया तो जाहिर बात है कि इंसुलिन की डिमांड बढ़ जाएगी। तो अगर कोई शख्स ये दोनों चीजें एक साथ खानी शुरू कर देता है तो अब इन दोनों की आपस में मुकाबला शुरू हो जाता है। एक हिस्सा कहता है कि नहीं, मुझे इंसुलिन जिस्म को पूरी करनी है, और एक हिस्सा कहता है नहीं, मुझे लाइपेज और अमाइलेज जो है वो ज्यादा यानी कि जो है ना बना कर देना है। तो इन दोनों की टसल आपस में चलती है, तो फिर जो हिस्सा कामयाब हो जाता है वो चीज़ हमारी कंट्रोल हो जाती है, और जो हिस्सा कामयाब नहीं होता वो चीज़ हमारी जिस्म में बढ़ जाती है। मसलन अगर इंसुलिन बनाने वाला पार्ट जो है वो अगर कमजोर रह गया तो हमें हाइपरग्लाइसीमिया यानी शुगर या डायबिटीज हो जाएगी। और अगर लाइपेज अमाइलेज वाला हिस्सा जो है वो प्रोपोर्शन वीक रह गया तो हाइपरलिपिडीमिया या हाइपर ट्राइग्लाइसाइडीमिया वगैरह जैसी अलामतें हो जाएगी। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि हमारे लबलबे को सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई भी आ रही होती है, और वो अगर वीक हो जाए सिंपैथेटिक सप्लाई तो इसकी वजह से गुड क्वालिटी की इंसुलिन नहीं बन पाती या वो जितनी चाहिए उतनी नहीं बन पाती। तो इससे भी हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है या डायबिटीज हो जाती है। और वो चीजें क्या हैं, तंबाकू है, खट्टी चीजें हैं, सिट्रस चीजें हैं, और ठंडी और खट्टी जितनी भी चीजें हैं, एसिडिक हाईली एसिडिक डाइट हैं, जैसे प्रोसेस्ड फूड में एसिड वैल्यूज ज्यादा होती हैं। ये सारी की सारी चीजें हमारे पैरासिम्पैथेटिक डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करती हैं, जिसकी वजह से लबलेबे को जितनी स्टिमुलेशन चाहिए इंसुलिन बनाने के लिए वो ना होने की वजह से प्रॉपर इंसुलिन नहीं बनती, और उसकी वजह से हमें डायबिटीज हो जाती है। दूसरी एक मिसाल जो है वो मॉडल के तौर पे हमें डायबिटीज का मॉडल समझना पड़ेगा। वो ये है कि फर्ज करें कि एक बावर्ची है जो 200 लोगों का खाना पकाता है, और वो बावर्ची के साथ मजबूरी ये है कि वो उसके पास एक चूल्हा और एक ही देग है, और वो 8 घंटे में खाना पका के 8 घंटे के बाद वो अपने 200 मजदूरों को सर्व करता है। अब कहीं से पार्ट टाइम जॉब के तौर पे उसको एक और देग का ऑर्डर मिल गया, तो अब ये परेशान हो गया कि मेरे पास चूल्हा भी एक है और देग भी एक है, और वो 8 घंटे का एक प्रोसेस है और 3 देगें वो दिन में पहले ही पका रहे। तो उसने चौथी देग को एडजस्ट करने के लिए 2-2 घंटे हर स्लॉट में से कम करके चौथी देग पका तो ली, लेकिन जब वो खाना लोगों के सामने आया तो वो कच्चा था, उसका टेस्ट सही नहीं था, वो गला हुआ नहीं था। तो उन्होंने खाने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से उनको यानी कि जो है वीकनेस शुरू हो गई। और जब उनके ठेकेदार ने उनको जबरदस्ती खिलाने की कोशिश की तो वो बीमार पड़ना शुरू हो गए। ना खा के कमजोर हो रहे थे, और कच्चा और खाना खा के वो बीमार होना शुरू हो गए, उनको गैस्ट्रिक अपसेट्स हो गए। बिल्कुल इसी तरह से हमारा दिमाग एक बावर्ची का रोल प्ले कर रहा है, हमारा मैदा एक देग का रोल प्ले कर रहा है, उसके नीचे जो पैंक्रियास है वो एक चूल्हे का रोल प्ले कर रहा है। अब ये एक खाना जिसकी सेंसरी से स्टार्ट होके जब वो खाना हमारे सामने आता है
तो हमारी सारी गैस्ट्रिक सेक्रीशंस और हार्मोन्स जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और उस वक्त से हमारा डाइजेस्टिव प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाता है, खाना देखते ही या खाने का सुनते ही। तो एक खाना खाने से और हजम होने तक का जो, और उसके मेटाबॉलिक पाथवेज कंप्लीट होने तक का जो वक्त है वो कम से कम 8 घंटे है। अब अगर एक आदमी 8 घंटे के गैप के साथ खाना खा रहा है तो वो हमेशा सेट रहेगा। लेकिन उसमें भी एक अहम बात है कि जो हमारी गैस्ट्रिक सेक्रीशंस हैं वो फजर के बाद या मगरिब के बाद जो है, शाम के वक्त, सूरज ढलने के वक्त और सूरज के थ्रू होने के वक्त हाईएस्ट लेवल पे होती हैं। ये इसके पीक आवर्स हैं हमारे गैस्ट्रिक सेक्रीशंस के। इस वक्त में कोई सादा से सादा खाना भी खाएगा तो उसको पूरी एनर्जी मिलेगी। उसके अलावा के वक्त में अगर वो खाना खाएगा तो वो खाना अनडाइजेस्टेड मील जो है वो, उसमें फर्मेंटेशन होगी, गैस्ट्रिक अपसेट होंगे, और उसके साथ उसको उसकी शिकायत होनी शुरू हो जाएंगी, और शुरू में वीकनेस होगी और इंडाइजेशन होगी, हार्ट बर्न होगा। तो जितने भी हमने डायबिटिक सर्वे किए हैं, उनको डायबिटीज होने से पहले 5 साल पहले जब हमने उनका सर्वे कंडक्ट किया तो पता चला कि उन्हें पहले से ही गैस्ट्रिक अपसेट था, इंडाइजेशन थी, हार्ट बर्न था, कॉन्स्टिपेशन थी। और ये चीजें जब सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हुई और क्योर नहीं हुआ तो वो फिर आगे चल के डायबिटीज में कन्वर्ट हो गया। इसलिए डायबिटिक पेशेंट को ये दोनों मॉडल अच्छे तरीके से समझने होंगे, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन ये है कि एक खाने से दूसरे खाने में कम से कम 8 घंटे का गैप रखना होगा। अभी एक खाना हमारा मेटाबॉलिक पाथवे से गुजर रहा है, अभी वो मुकम्मल हजम नहीं हुआ, और हमने बीच में कोई और चीज खा ली, फिर कुछ और चीजें खा ली। अब जब ये 3-4 घंटे के गैप से चीजें आएंगी तो जाहिर बात है कि ये हमारे लिए यानी कि जो है ना बीमारी का बाइस बनेगा। और इस तरीके से ये, सॉरी, 1 मिनट जरा मुझे दीजिएगा। Okay, sir. You should pick it. हाँ, तो हम, अच्छा, फिर हमें यानी कि जो तीसरी बात है कि ग्लूकोज की यानी कि जो इंसुलिन की एंट्री है वो तो इंसुलिन, ग्लूकोज की इंसुलिन के बगैर तो हो नहीं सकती। लेकिन एक पाथवे ऐसा है जिसमें ग्लूकोज की एंट्री इंसुलिन के बगैर भी हो सकती है, वो है कम से कम 20 मिनट कंटिन्यूअसली वॉक करना या एक्सरसाइज करना। तो अगर कोई शख्स यानी कि शुरू के जो 5 मिनट जब हम वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो वो एनारोबिक एक्सरसाइज होती है जिसमें कि लैक्टिक एसिड एक्युमुलेशन होती है और वो क्रैम्प्स और हमारा बॉडी के अंदर एसिड लेवल बढ़ा देते हैं जिससे सेल इंजरी होती है। लेकिन अगर वो वॉक 20 मिनट तक हम कंटिन्यू रखें तो अब सेल जो है बगैर इंसुलिन के भी ग्लूकोज का अपटेक शुरू कर देगा। तो अगर कोई शख्स 20 मिनट सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने की एक्सरसाइज प्रॉपर कर ले और 20 मिनट वॉक कर ले, यानी कि ये दो चीजें अगर आपने दो एंड संभाल लिए कि सुबह में 20 से 30 मिनट तक वॉक कर ली, आइडियल तो 40 मिनट्स हैं, और असर के बाद अगर कोई शख्स 20 मिनट सीढ़ियाँ उतरने चढ़ने की एक्सरसाइज करता है या कोई ऐसी गेम करता है जिसमें उसको पसीना आना जरूरी है, तो अब हमारे मसल्स में ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन विदाउट इंसुलिन भी हो जाएगी, और हमारा जो ग्लाइसेमिक लेवल है वो मेंटेन हो जाएगा। तो ये सारी की सारी चीजें तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी और इसके असल मॉडल की तरफ हमें यानी कि समझाती हैं। तीसरी बात, डायबिटीज असल में कोई बीमारी नहीं है, ये लॉस ऑफ एनर्जी है। हमारी जिस्म जो है वो 4 तरह की एनर्जीज की कम्बिनेशन है, बिल्कुल। यानी मैकेनिकल एनर्जी है, दूसरे नंबर पर केमिकल एनर्जी है, तीसरा इलेक्ट्रिकल, और चौथा एटॉमिक एनर्जी है। तो हमारा जो जिस्म है वो इन 4 एनर्जीज की कम्बिनेशन है। मैकेनिकल एनर्जी मसल्स में बनती है और ये डाइट नंबर 1 और 2 से बनती है। इसका काम है पावर, मूवमेंट और टोन। केमिकल एनर्जी हमारे लीवर में बनती है और वो केमिकल रिएक्शन से बनती है, और एक हेपेटोसाइट में 500 केमिकल रिएक्शन साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं और उससे एटीपीज बनते हैं, एनर्जी बनती है। तीसरी एनर्जी हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ये ग्लूकोज के अपटेक से होती है। तो हमारे न्यूरॉन में ग्लूकोज का अपटेक जो है वो विदाउट इंसुलिन होता है, और उसकी इम्पल्सिस की वजह से ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटता है और एनर्जी बनती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है प्लानिंग में, प्रोग्रामिंग में और मेमोरी रिकॉलिंग में यूज होती है। इसकी सोर्स जो है वो डाइट नंबर 5 और 6 है। इसके अलावा एटॉमिक एनर्जी की जो सोर्स है वो एसए नोड एबी नोड से जो स्पार्किंग होती है उसकी वजह से
हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है और इतनी स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होती है कि 7 मिनट में पूरी बॉडी की सर्कुलेशन जो है वो यानी कि कंप्लीट हो जाती है। अब अगर किसी शख्स को ये नहीं पता कि मैकेनिकल एनर्जी बढ़ाने के लिए कौन सी डाइट लेनी है, वो डाइट चार्ट हम आपसे शेयर करेंगे इंशाल्लाह। तो डाइट नंबर 1 और डाइट नंबर 2 जो है वो मैकेनिकल एनर्जी की सोर्स है, और डाइट नंबर 3 और 4 केमिकल एनर्जी की सोर्स है, और डाइट नंबर 5 और 6 जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की सोर्स है, और एटॉमिक एनर्जी की सोर्स मिनरल्स और वाइटामिन और इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। अब अगर किसी की अब इसके स्पेशल इंडिकेटर्स हैं। अगर किसी की मैकेनिकल एनर्जी वीक है तो उसकी सिम्टम्स ये आएंगी कि उसको मस्कुलर क्रैम्प्स होंगे, उसको मस्कुलर फिटीग होगी, और मसल्स की जो बल्क है उसके ऊपर काफी यानी कि फर्क आएगा, उसका बल्क लॉस होना शुरू हो जाएगा, मस्कुलर वीकनेस शुरू हो जाएगी, उसके लिए चलना फिरना ज्यादा देर खड़े होना मुश्किल होगा। इसके अलावा दो पैरामीटर और हैं जिसमें मैकेनिकल एनर्जी का जो लॉस है वो पता चलता है। वो ये कि इन लोगों को गर्मी बहुत ज्यादा लगती है, हीट इंटॉलरेंस होती है, और पानी की प्यास बहुत लगती है, लेकिन पानी पीने से इनकी प्यास नहीं बुझती। तीसरे नंबर पे दूसरे नंबर पे जो केमिकल एनर्जी की जब लॉस होगा तो मरीज को ड्राई आई होगी, ड्राई जॉइंट्स होंगे, आर्थ्रेल्जिया होगा, और उसको बहुत ज्यादा ड्राइनेस होगी, स्किन के ऊपर क्रैक्स बहुत ज्यादा पड़ रहे होंगे, उसको सर्दी बहुत ज्यादा लगेगी। तो ये केमिकल एनर्जी के लॉस की अलामत है कि मरीज को गर्मी बर्दाश्त होती है, बुरी लगती नहीं बल्कि बर्दाश्त कर लेता है, और पानी पीने से उसकी प्यास बुझ जाती है, या कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक पीने से उसको जो है उसकी सिम्टम्स में रिलीफ होता है। तीसरे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर लॉस होगी तो पेशेंट को गर्मी अच्छी लगेगी और सर्दी बुरी लगेगी, और उसको नमनेस होगी, न्यूरस्थीनिया होगा, नमनेस होगी, उसके हाथ पांव सुन्न होना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा उसको वॉक करने से, मसाज करने से, फिजियोथेरेपी करने से फायदा होगा, और रेस्ट करने से, और खास तौर पे पंखे के नीचे बैठने से या एसी में बैठने से उसको तकलीफ बढ़ जाएगी। और फ्रोजन शोल्डर भी डायबिटीज में इसी क्लास के लोगों को होता है। और चौथे नंबर पे अगर हमारी एटॉमिक एनर्जी वीक है तो अपेरेंटली पेशेंट की सिम्टम्स ये होंगी कि वो डिप्रेसिव होगा, मूड ऑफ होगा, चेहरा स्पॉट होगा, उसका बिहेवियर अच्छा नहीं होगा, एटीट्यूड जो है ना वो इतना उसका अच्छा नहीं होगा, और वो सॉरो डिप्रेसिव स्टेट में वो रहेगा, तन्हाई पसंद होगा। तो हम इस मार्कर के जरिए से और उन एनर्जीज के आउटकम के जरिए से स्कोरिंग करते हैं, और पेशेंट की एनर्जी जो है वो हम असेसमेंट करते हैं। एनर्जी असेसमेंट करने के बाद जो भी एनर्जी उसकी वीक है उससे रिलेटेड डाइट, उस एनर्जी को पूरा करने वाली जो डाइट है वो डाइट का मील प्लान बनाया जाता है, कि जो कि यानी कि आम न्यूट्रिशनिस्ट जो है वो उसको इतना नहीं जानते। तो ये हमारी एक स्पेशलिटी है जिसमें हम 20 साल से बहुत ज्यादा कामयाब हैं, और ये मील प्लान सीजन टू सीजन टेम्परामेंट वाइज चेंज होता है। तो जब ये डायबिटिक पेशेंट को उसके मर्ज का डॉक्टर बनाना जरूरी है, और उसको ये सारी बॉडी के सिग्नल सिखाने इंतहाई जरूरी हैं, कि जब तुम्हें ये सिम्टम्स आ रही हैं, इस क्लास की सिम्टम्स आ रही हैं तो आपने ये चीजें नहीं खानी, और अगर ये सिम्टम्स आ रही हैं तो ये चीजें आपने खानी है। तो जब वो एनर्जी वाइज किसी भी चीज की डाइट समझ लेता है और उसकी सिम्टम्स को, उसकी स्कोरिंग करना मरीज सीख लेता है, तो अस खुद वो सारा साल उन सारी चीजों को फॉलो करता है, और अल्लाह के फजल से हमारे डायबिटिक पेशेंट जो हैं वो उसमें क्योर रेट इसी वजह से बहुत अच्छा है कि हम उनको एक कंप्लीट हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ लेके चलते हैं। 4 से 6 महीने में वो मुकम्मल ट्रेंड हो जाते हैं, और पहला HbA1c ही उनका हमारा सक्सेस जो है वो प्रूफ कर देता है। दूसरी बात क्या है कि साइकोथेरेपी साइकोथेरेपी भी ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल है, जो कि एक फिजिशियन को इसमें एक्सपर्ट होना चाहिए। देखिए, हमें फिजिशियन की डेफिनेशन भी समझनी है। जो मूवमेंट कायनात में मौसम और दिन रात की सूरत में हो रही है, चांद सितारों की जो मूवमेंट हो रही है, इसको हम फिजिक्स कहते हैं। और जो मूवमेंट जिन बिल्कुल। रूल्स के साथ बॉडी में हो रही है, इसको हम फिजियोलॉजी कहते हैं। तो जो शख्स फिजिक्स के जरिए फिजियोलॉजी को बैलेंस करना जानता है वो फिजिशियन कहलाता है। मिसाल के तौर पे आप कमरे में बैठे थे, आपका गर्मी बहुत लग रही थी, आपके कमरे में टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड था, बहुत गर्मी लग रही थी। अब आपने फिजिक्स को फिजियोलॉजी से कनेक्ट किया, यानी ऊपर सोलर पैनल लगाए, कमरे में एक इन्वर्टर लगाया,
और आपका जो है ना, जितनी भी धूप तेज आएगी अब उतना ही आपका कमरा जो है वो ठंडा होगा। बिल्कुल। इस तरीके से अगर आप जो कायनात में एनर्जीज चल रही हैं उन एनर्जीज को बॉडी की एनर्जी के साथ लिंक कर देते हैं, और डाइट की एनर्जीज को आप अगर का इल्म सीख लेते हैं कि कौन सी एनर्जी कौन कौन सी डाइट कौन सी एनर्जी से लिंक करती है, और उससे रिलेटेड डाइट ही मरीज को दें। अगर किसी की डायबिटीज इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कमी की वजह से हो रही है तो अब उसको इलेक्ट्रिकल डाइट ही देनी पड़ेगी, और वो डाइट चार्ट में आपको बहुत अच्छी समझ में आ जाएगी। किसी की मैकेनिकल एनर्जी की वजह से अगर डायबिटीज हो रही है तो उसको सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी की सोर्स की डाइट देनी पड़ेगी। जैसे ही ये डाइटरी बैलेंस होगा, खाने का टाइम जो है वो आपका बिल्कुल ठीक होगा, गैस्ट्रिक सेक्रेशंस के मुताबिक होगा, उतना ही डायबिटीज कंट्रोल करने में आप कामयाब होंगे। हमारे सारे क्लिनिशियन से ये सवाल रहा, और बहुत सारी मैं दुनिया भर की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज में मैंने अपने साथियों से क्लिनिशियन से ये सवाल पूछा कि यार पेशेंट ठीक क्यों नहीं हो रहे, बिल्कुल। है ना। एक आदमी बिल्कुल स्टैंडर्ड के मुताबिक ट्रीटमेंट करवा रहा है, उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है डायग्नोसिस जो है वो बिल्कुल अप टू द मार्क है, डायग्नोज पेशेंट है कि उसकी पैथोलॉजी भी डिफाइंड है, और जो हम ड्रग दे रहे हैं उसका मोड ऑफ एक्शन भी नोन है, उसकी फार्माकोकाइनेटिक भी नोन है। अब पेशेंट ठीक क्यों नहीं हो रहा बिल्कुल। है? पेशेंट 20 साल 25 साल दवाइयां खाने के बाद नतीजा क्या निकलता है कि जी डायबिटिक न्यूरोपैथी हो गई, डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो गई, डायबिटिक हम्म। रेटिनोपैथी हो रही, और हम सारे क्लिनिशियंस जो हैं वो सिंड्रोम कह के, ऑटोइम्यून कह के, इडियोपैथी कह के अपनी जान छुड़ा लेते हैं। नहीं, जब तक कि आप किसी डिजीज की माहियत को, उसकी पैथोजेनेसिस पैथोलॉजी को पूरी तरह से नहीं समझेंगे और उसको यूनिवर्सल लॉस के साथ लिंक नहीं करेंगे और उसके मुताबिक एक्शन नहीं लेंगे, यू विल नेवर ट्रीट द पेशेंट, नेवर क्योर द पेशेंट। सो हमें इन सारी चीजों का ख्याल करना पड़ेगा। अब साइकोथेरेपी क्या है और साइकोथेरेपी का डायबिटिक पेशेंट में क्या रोल है? बिल्कुल। देखें, बात यूं है कि यूनिवर्सल लॉज हैं और ह्यूमन नेचर है कि हर शख्स एक अच्छा लाइफस्टाइल चाहता है, एक अच्छी लाइफ चाहता है। हम्म। हर शख्स चाहता है मैं कामयाब हो जाऊं, बिल्कुल। मैं एक कंफर्ट जोन में रहूं, मुझे किसी किस्म की कोई माली परेशानी ना हो, मुझे कोई किसी की तरफ से कोई शिकायत ना हो, और मैं यानी कि सारी उम्र सेहतमंद रहूं। ये कामयाबी हासिल करना और कामयाबी का जुनून हर आदमी का एक फितरी फितरी उसकी रिक्वायरमेंट है, और उसके लिए बिल्कुल। वो सिर्फ सोचता नहीं है, बेहतर भी करता है। सुबह से लेकर रात तक वो किसी ना किसी मेहनत में मगन भी रहता है कामयाब होने के लिए। हम्म। अब जिस मालिक ने ये जिस्म डिजाइन किया है और जिस मालिक ने ये कायनात डिजाइन किया है, हम अगर उसी से इसका सवाल पूछें कि ये यानी कि जो हमारी चीजें हैं ये कहाँ से पूरी होंगी, तो उस मालिक ने एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट अपने मैसेंजर्स के जरिए में दी कि कामयाबी मेरी बात मानने में है। बिल्कुल। यानी वो कायनात का बनाने वाला मालिक सिंपल सी आपको सोल्यूशन दे रहा है कि मेरी बात मानो तुम कामयाब हो जाओगे, और मेरे सिवा कोई भी मालिक नहीं है, मेरे सिवा कोई रब नहीं है, तुम इस बात को मान लो तुम कामयाब हो जाओगे। तो हम्म। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जो कुरान में बार बार कोट किया गया है वो इसलिए किया गया कि एक 7 साल के बच्चे का फितरी क्वेश्चन था, यानी उसका एक नेचुरल क्वेश्चन था कि मेरा रब कौन है, मेरा जिस्म बनाने वाला कौन है, मुझे पालने वाला कौन है। तो उन्होंने अपनी माँ से सवाल किया कि मेरा बनाने वाला कौन है। उन्होंने कहा जी मैं तेरी बनाने वाली हूँ, मैं तेरी मालिक हूँ, मैं तेरी यानी रब हूँ। तो उसने कहा तेरा रब कौन है? उसने कहा तेरा बाप मेरा रब है। उसने कहा मेरे बाप का रब कौन है? उन्होंने कहा जी नमरूद तेरे बाप का रब है। उन्होंने कहा नहीं वो तो जालिम है, जालिम आदमी रब नहीं हो सकता। फिर उन्होंने कायनात में कई चीजों को सिलेक्ट किया कि शायद ये दरख्त मेरा रब हो, शायद ये सूरज मेरा रब हो, शायद चांद मेरा रब हो। लेकिन उनकी परेशानी पे अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए उनकी रहनुमाई की और उनको यही स्टेटमेंट दी कि तुम अगर मेरी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तुम कामयाब हो जाओगे। हम्म। तो जब इब्राहिम इस्लाम ने उसको फॉलो किया तो अल्लाह ताला ने उनको ऐसी कामयाबी दी कि उनके रिस्क में इतनी बरकत दे दी कि वो जमजम और खजूरें कितना लाइव एग्जांपल है कि आज तक खत्म नहीं हो रही, और बिल्कुल। इज्जत और इत्मीनान इतनी दी कि सारी दुनिया के मुसलमान नमाज में कहते हैं जी कमा सल्लल्लाहु तआला इब्राहिम कमा बारक तआला इब्राहिम। सेहत और खुशियां भी दे दी उन्होंने। अब मैं इसको एक आसान सी मिसाल से आपको समझाऊं कि
सोमेटिक डिसऑर्डर और पैरासिम्पैथेटिक डिस्ट्रीब्यूशन की वजह ये है कि फर्ज करें कल 2 बजे आपने अमेरिका जाना है, आपकी फ्लाइट है कल 2 बजे अमेरिका की, और आज आपने मेरे लेक्चर में तशरीफ लाए और अपना बैग भूल के वहां चले गए, उसमें आपका वीजा था, टिकट था, पैसे थे। अब भूल कर आप मेरे कमरे में गए और तलाश कर रहे हैं आप अपने घर में, पेट्रोल पंप पे, मस्जिद में और एयरपोर्ट पे। अब जितना जितना फ्लाइट का टाइम करीब आता जाएगा आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता जाएगा, आपकी पैरासिम्पैथेटिक डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ती जाएगी। तो वो That- एसिटाइलकोलिन जिसने स्टिमुलेट करना था पेंक्रियास को, अब वो आपकी प्लानिंग प्रोग्रामिंग में ओवर यूज हो रही है। तो अब यहीं से जब भी कोई स्ट्रेस क्रिएट होता है तो उसी वक्त किसी ना किसी टिश्यू को एसिटाइलकोलिन की सप्लाई कम होती है और वहां के डिसऑर्डर शुरू हो जाते हैं। तो अब Exactly. हर शख्स कामयाब होना चाहता है। चलें जी, फ्लाइट का मसला तो आर्जी था, आज आपकी फ्लाइट मिस हो गई, आप कल सामान मिल गया, कल चले जाएंगे, परसों चले जाएंगे। लेकिन चार मसले तो हमारे परमानेंट हैं और सारी उम्र तक हैं, मौत तक हैं, कि हमारे रिस्क में बरकत हो, हमें इज्जत के साथ इत्मीनान मिले, हमें सेहत के साथ खुशियां मिलें, हमारी हिफाजत हो। अब ये चार चीजें जहां रखी हैं वहां हम नहीं ढूंढ रहे, और जहां नहीं रखी वहां हम खूब ढूंढ रहे हैं। Hmm. हाँ, तो Exactly. इसलिए जब हम किसी भी पेशेंट की साइकोथेरेपी करते हैं और उसको बताते हैं कि भाई कुदरत ने जो तुम्हारे लिए सोने और जागने के रूल्स बनाए हैं वो अटल हैं। अगर कोई Exactly. शख्स सुबह 10 बजे सोकर उठता है और वो ये चाहे कि सूरज भी सुबह 10 बजे ही निकले, तो ऐसा नहीं हो सकता। उसको लॉस के मुताबिक अपनी जिंदगी बनानी होगी, और कोई चीज उसकी जिंदगी की, उसकी मर्जी या उसकी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं होगी। तो जब आदमी Exactly. कामयाबी को सही जगह तलाश करता है तो वो जल्दी कामयाब होता है। इसके अलावा अल्लाह ताला ने एक और रहनुमाई की कि कुछ लोगों ने कामयाबी को हुकूमत में तलाश किया। हाँ, जैसे नमरूद ने कामयाबी हुकूमत में तलाश की, फिरौन ने फौज में तलाश की, कौम शोएब ने तिजारत में, कौम सबा ने ज़राअत में, कौम समूद ने सनत में, कौम ईसा ने तिब में, कारून ने माल में, कौम आद ने ताकत में। तो अब उन्होंने कामयाबी क्योंकि गलत जगह तलाश की तो दुनिया भी उनकी बड़ी परेशानी में गुजरी, और वो चीजें जो वो चाहते थे वो उनको हासिल भी नहीं हुई। तो मैं यहाँ पे Exactly. अपने क्लिनिक में अपने पेशेंट को इन चीजों की थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़ा सा प्रैक्टिस करवाता हूँ कि भाई हमें क्या सोचना है और क्या नहीं सोचना। और किसी मसले का हल सोचना है तो अपने बनाने वाले से रिक्वेस्ट करें कि जिसने हमारा ये खूबसूरत जिस्म बनाया, हमें अहसन तकवीम बनाया, हमें अपना खलीफा बनाया, और हम अपने बॉस जो हमारा असल बॉस है, तो हम अगर उससे रहनुमाई लेंगे तो हमारी यानी कि दुनिया भी बन जाएगी। और तो इसको जब हम पेशेंट की साइको चार्जर, तो ये साइकोथेरेपी करते हैं तो अल्लाह के फजल से हमें बहुत हद तक कामयाबी होती है। और हमारे पेशेंट जो हैं वो हर एतबार से, जब उनको मील प्लान, अप्रोप्रिएट मील प्लान मिल जाता है, और उनको एनर्जी लेवल के एतबार से साइकोथेरेपी की थोड़ी सी एक्सरसाइजेस करवाते हैं हम, वो करवाते हैं जिससे उनका स्ट्रेस रिलीफ होता है। तो अल्लाह के फजल से ये सारी चीज़ें देखने से हमें यानी कि जो है ना अपने क्लिनिक में बहुत सारे पेशेंट में बहुत जल्दी यानी कि कामयाबी हासिल होती है। तो ये पर्सपेक्टिव थे सारी चीज़ों को समझने के। और इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। और बाकी एनर्जी आपने बैलेंस कर दी, आपने पैरासिम्पैथेटिक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होने दी। तो बस ये इससे बड़ी आपका सक्सेस जो है वो कोई भी नहीं होगा कि आप इन सारी चीजों में अपने पेशेंट को जो है वो सपोर्ट करें। जी, जी हामिद, आपको आवाज आ रही है मेरी? कैसे पता चले? 10 मिनट। हेलो।
हामिद, आपको आवाज आ रही है मेरी?